गुड इवनिंग फ्रॉम लॉस एंजलिस, नमस्ते टू इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। आज हम बात करने जा रहे हैं और आज हमारी इनवाइटी हैं डॉक्टर रेखा भारद्वाज। डॉक्टर रेखा भारद्वाज इज वर्किंग एज अ डॉक्टर एज अ डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन चौधरी BRG गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, श्री गंगानगर, राजस्थान। 23 साल के रिच एक्सपीरियंस के साथ शी हैज डेडिकेटेड हर करियर इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. So with that, the result is two students of her has represented India and 70 students have participated in all India inter-university competitions. She is certified yoga trainer and evaluator from Yoga Certificate Board, Ministry of Ayush, Government of India, and also YTTC 500 hours certified trainer from USA Yoga Alliance. She is a member of Board of Study and Sports Board since 2010, and the achievement list will go on and on and on. So today we are here to talk about her latest book, which is a bestseller on Amazon, Wellness Spectrum. She has already written one more book, that is Psycho, Socio, and Cultural Factors Influencing Stress and Performance today. So, stress and performance, स्ट्रेस की बात आते ही डेफिनेटली सभी का ध्यान जाता है कि, और सभी ने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कहीं ना कहीं जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम रियलाइज करते हैं वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म दी बेस्ट और बेटर और वट एवर वी कैन। हम अपने उस ऑप्टिमम पे नहीं आ पाते हैं, या हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं जितना हमें पता है कि हम कर सकते हैं। सो आपकी इतनी वास्ट नॉलेज जो है अबाउट द साइको, सोशो, कल्चरल एंड डेफिनेटली ये सभी जो है इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेस पे और आपकी परफॉर्मेंस पे। सो वेलकम और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट योर बुक हैज हिट द Amazon bestseller. Although we have co-authored, but let me tell you to all my listeners that in my mentorship program I just give my co-author the path, whatever they are thinking, whatever they are expert, they have the expertise, whatever they want to give back to the society. I am just the guiding factor. In each and every book of my mentees, it's their concept, it's their expertise, and it's their future giving back to the society. So, welcome in the show, and let's talk about the wellness spectrum, because generally लोगों को wellness dimensions बहुत जगह पढ़ने को मिला होगा, and your brand is wellness spectrum. So what you are going to give back to the society through this brand wellness spectrum, what does it mean? Okay, thank you, Dr. Anju, and thank you for giving me this opportunity. जैसा अभी आपने बताया कि I have written a book before on the sports person as psycho, socio, and cultural factors affecting their stress. Right. So, as I'm in the field of physical education and dealing with the sports persons, after that, when the COVID came and I turned towards the yoga to learn more about it, I felt a need that wellness is needed. It's not our only the health, but the total wellness is needed for everyone. And then I thought, why not to do something for the wellness of all the people around us? Right. And now comes the what you have asked, what is wellness? So what is wellness? Wellness is, I think, a universal term. You can say wellness is an approach, because to being well is different for every person, from person to person. For me, to being well may be something different. For you, it may be something different. But when we talk about wellness, जब हम wellness की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि ये एक this is a growth, this is a progress. हम रोज कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अपने में सही करते हुए या अपने को आगे बढ़ाते हुए
और जो हमारे एम है, जो हमारा ध्येय है, उस तक पहुंचते हैं, then we can say we are well. And that's why in my book Wellness Spectrum, I have mentioned all this spectrum is, as you said, ki it has different dimensions. It's not only the health, and we have mentioned it ki it's not only the health, but different aspects of our life which contribute to the total wellness. Wow. Right. In this way. And because everyone in our society, we need health, happiness, and these two factors. The tagline of my book is only that wellness is the journey. It's not the destination. The destination is our happiness. Right. And to receive that happiness, we have to go step by step. We have to get ourselves well to Right. opt for the total wellness or total happiness. Wow. That So is जो the लोग thing. सुन रहे हैं, may they are working in corporate, may they are working or they are personal, they are professional or they are homemakers. This is a process. This is not that Yes. you just do some kind of a journey for weight loss and after that you regain it. Sometime you go for the meditation, maybe retreat or something, but back to the life, you are again into the stress. You have to learn to manage your holistic health. यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछकर फिर मैं डायमेंशन पर आऊंगी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस? बिकॉज बहुत सारे लोगों को अभी हेल्थ, फिटनेस, वेलनेस, ये अलग अलग टर्म, दोस्त who just don't belong to physical education, sports, fitness, उनके लिए एक परिभाषा को आप थोड़ा सा समझाएं कि हेल्थ और वेलनेस में क्या डिफरेंस है. हेल्थ हमारे, अगर हम उसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम पूछते हैं, किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, और अगला कहता है मैं ठीक हूँ. मैं ठीक हूँ मीन्स आई एम हेल्दी. राइट. बिकॉज उस समय वो सिर्फ बात करता है अपने फिजिकल हेल्थ. सो True. हेल्थ, when we talk about the health, it is the being our state of our body. आई एम हेल्दी, मेरी हेल्थ सही है. लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि वेलनेस, तो वेलनेस इज द पाथ. Wellness is a path of our knowledge and action. How well we are, not only in our health, but also mentally, emotionally, spiritually, socially, what we are going to talk. Right. So, और जहां यहाँ बात आई कि वेलनेस की, वाई वेलनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि वेलनेस की बहुत थोड़े दिन पहले तक कोई बात नहीं बात होती नहीं थी. होती थी जी. सब हेल्थ पे ज्यादा फोकस करते थे. तो जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आई एम वेल मीन्स आई एम बैलेंस्ड, आई एम ओके विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, Right. maybe social, environmental, spiritual. So then the one can say, yes, I am well. I am well means I am happy, I am satisfied. So Right. that's the thing when we say I am well. वाह. सो यहीं पर हम पहले डायमेंशंस की भी बात कर लेते हैं कि वेलनेस हेल्थ की बड़ी स्पेसिफिक सी दो लाइनों की एक परिभाषा है. तो एब्सेंस ऑफ डिजीज, Yeah. और जनरली हम लोग, इवन अगर हम इंडिया हो, यूएस हो, कहीं पर भी हम बात करते हैं हाउ आर यू, तो इमीडिएट हमारा आंसर यही होता है आई एम फाइन. Although maybe we are suffering with headache, maybe we are suffering with stomach ache, maybe we are in anxiety or panic attack, but एक आंसर यही होता है. लेकिन when we sit with our own self, तब हमें लगता है कि हमारा ये कॉर्नर भी थोड़ा हमें तंग कर रहा है, हमारा वो एस्पेक्ट भी तंग कर रहा है. तो कौन सी ये डायमेंशंस है जिनकी आपने बात अपनी किताब में की है? और मैंने देखा है जनरली हम लोग, अगर गूगल ज्ञान की दुनिया है, लोग गूगल करते हैं तो देर आर 5 dimension of wellness, there are 7 dimension of wellness, but when I have seen your list of dimension, so Yeah. I was so impressed because it was covering a lot about the life. So please go ahead with that dimensions. Thank you. Here I have mentioned in my book, this is the book, This is the book. Wellness मैं Factor. अभी कहने वाली थी, आप Yeah. प्लीज अपनी किताब दिखाइए. और इसके जो कलर्स हैं, ये स्पेक्ट्रम हम लोगों ने जो डिसाइड किया था ब्रांड ने, वो इसीलिए किया था कि जीवन के सारे रंग जो हैं वो भरे होने चाहिए, तभी सारे, खुशियां आएंगी. या तभी खुशियां आती. करेक्ट, करेक्ट. इट्स अ वेरी सो ब्यूटीफुल बुक. एज यू सेड कि लोगों ने, किसी ने 5 डायमेंशंस बताए, किसी ने 8 बताए, मैक्सिमम 8 बताए 8 है गए. जी. एंड और मैंने इस बुक में ये किया है कि हमें जब भी सुरक्षित रहना है तो हमें अपने आप को सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है.
वी हैव टू फेंस अवर सेल्फ। Right. एंड इस बुक में हमने ये लिखा है कि वी शुड फेंस अवर सेल्फ विद मैपी फेंस। मैपी फेंस मीन्स वी शुड लुक फॉर अवर मेंटल वेलनेस, emotional wellness, physical wellness, then intellectual wellness. Mappy fence financial and our spiritual, social, especially occupational, career wellness, which is missing in many of them. Right. Nutritional. So, like this, when we fence ourselves, when we look after these all dimensions, like when we say for mental wellness, it means that we should be positive in our mind. We should be mentally sound. Mental health should be positive. Then comes the E, that is emotional. We should know what our feelings are and how we have to take care of our feelings and cope with the stress which is prevailing everywhere today. Right. And to have respect, दूसरों के भी emotions को हमें respect करना चाहिए. Then only we'll be happy. Then यहाँ comes मैं the physical रोकूंगी aspect. यहाँ मैं रोकूंगी Yeah, ये sure. बहुत बड़ी बात है कि दूसरों के भी इमोशंस की हमें कदर करनी चाहिए। और ज्यादातर स्ट्रेस का जो कॉज होता है वो यही है कि हम अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। हमें लगता है बाकी सब लोग जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहे, वेयर एज कभी कभी मैंने देखा है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरों की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम दूसरों को समझने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं सब हमें समझे, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है तो हम किसी को समझना नहीं चाहते, एंड दैट क्रिएट स्ट्रेस। मे बी इट्स अ प्रोफेशनल लाइफ और मे बी इट्स अ पर्सनल लाइफ। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को एक दूसरों के इमोशंस को समझना, हमेशा अपने इमोशंस को ही रोते रहने की बजाय दूसरे के भी शूज के अंदर पाँव रख के देखना चाहिए कि उसकी क्या तकलीफ। देखना चाहिए। वेरी ट्रू। वेरी मच करेक्ट। क्योंकि आज हम जो अपना कंसेप्ट एक बना लेते हैं ना, वी डोंट वांट टू मूव आउट ऑफ दैट। हम उससे बिल्कुल निकलना ही नहीं चाहते। हम बिल्कुल। चाहते हैं कि जो दूसरा है वो हमारे हिसाब से चले, वो अडेप्ट। हमारी परवाह तो करे लेकिन हम उसकी परवाह ना करें। बिल्कुल जी। The world has become. राइट। Then the third aspect comes is physical wellness. We all know exercise, physical health, which is very important. बिकॉज जब हम वेलनेस स्पेक्ट्रम शुरू करते हैं, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो जिस पर हम फोकस करते हैं। एंड यही एक ऐसा डायमेंशन है जो विजिबल है। तो यहाँ से जब हम विजिबिलिटी देखते हैं, किसी की हेल्थ देखते हैं, तो हम सोचते हैं ये फिट है तो ये हर जगह से फिट होगा। राइट। तो राइट। then comes the fourth one is social wellness. Very much important in today's scenario. आज के टाइम में जो सोशल वेलनेस है वो खत्म होती जा रही है। हम सोशल है ही नहीं, सब सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। इवन एक परिवार में भी आप देखेंगे सब अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि घर में क्या चल रहा है। जी। एक बहुत अच्छा माइम आया था थोड़े दिन पहले कि घर में लाइट चली जाती है 3 दिन और देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई बंद हो जाते हैं सब, तो सब आके नीचे बैठते हैं। तो सेकेंड डे वो जो एक द बॉय ऑफ दैट फैमिली, लड़का होता है, सेकेंड डे वो अपने फ्रेंड से मिलता है एंड हिज वर्ड वाज, यार घर वाले इतने बुरे तो नहीं है। वाओ। दे हैड मेड फैमिली आल्सो। इतना सोसाइटी अपने घर से कट चुके हैं कि दे बिल्कुल। डोंट नो कि परिवार में क्या चल रहा है। बाहर खुशियां ढूंढ रहे हैं, बाहर फ्रेंडशिप्स रिलेशंस ढूंढ रहे हैं। Yeah. बिल्कुल। And दैट्स that too on net, not the physical relation, physical एग्जैक्टली। thing. और इसीलिए जब हम एक दिन बात कर रहे थे कि बिकॉज डॉक्टर रेखा जो है वो इतना वास्ट एक्सपीरियंस के साथ कॉर्पोरेट वेलनेस में बहुत योगदान देना चाहती हैं और हम योगा रिट्रीट्स कराना चाहती हैं, तो उस रिट्रीट में मोबाइल फोन जरूर हम लोग जो है सरेंडर कराएंगे। 3 दिन, Surrender 2 दिन, कराएं। 5 दिन नो मोबाइल, बिकॉज अगर वाकई ही इसको हम बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स, अगर सब लोग अपने, Yeah. और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि दिन में 1 घंटा 2 घंटा बिल्कुल मोबाइल दूर, वो जो हर मिनट मोबाइल में एक टिंग बजता है और हर कोई का एकदम ब्रेक होता है काम करने का सिचुएशन, फिर वो मोबाइल चेक किया जाता है किसने क्या डाला, फिर वो वहां से फेसबुक या इंस्टा शुरू हो जाते हैं और जो काम एक्चुअली कर रहे होते हैं, एंड देन पीपल से कि हमारे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेज नहीं होते हैं, हमारी चीजें पूरी नहीं होती हैं, तो करना सब कुछ बहुत चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। एंड दिस डिजिटल डिटॉक्स इज वेरी एसेंशियल। सो रिट्रीट्स में डेफिनेटली जो आने वाले हैं वो सोच कर आए कि हम 3 दिन
2 दिन बिल्कुल फोन रखने नहीं देंगे। I'll add here something. I tried it my own. आप नोटिफिकेशन को म्यूट कर दीजिए. जी जी म्यूट बिल्कुल। योर नोटिफिकेशन, इवन द साइंस ऑन इट. राइट। यू सी, आप 2 घंटे से पहले मोबाइल टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि वही आप जैसे कह रहे, टिंग बजेगी ही नहीं तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, और जो भी हम काम कर रहे हैं हम वो काम अपना पूरा हो जाएगा। करते रहेंगे, एग्जैक्टली। पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम मोबाइल को टच करेंगे. एग्जैक्टली। दिस इज एंड ऑल्सो वेरी गुड. Dr. Rekha is so busy morning till evening because एक तो उनका प्रोफेशन, एक उनका डेजिग्नेशन, और उसके बाद बहुत सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, फिर भी शी हैज रिटन अ बुक सो फास्ट, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन में आप लोग लिखना शुरू किया, सो इट वाज क्वाइट फास्ट राइटिंग. सो दैट्स थैंक ग्रेट. यू. एंड नेक्स्ट डायमेंशन मैम. Next dimension is the spiritual one, which is very much needed today. And spiritual means, because spirituality is something which is personal for every individual. How I am spiritual, मैं कैसे अपने values को करती हूँ. What is spirituality? It is the values and the faith. जी. So what values I have will be different from others. So spiritual wellness is very much important, because जो spiritual wellness है ये, it only brings the positivity in our life, राइट. how we look our life. Then next comes intellectual wellness, which is missing in many of the writings. Yeah. Intellectual wellness means as we grow, धीरे धीरे हमारी स्मरण शक्ति भी कम होती है. हम स्मार्ट तो होते हैं, बट हमें भी एक एज में आके से लगता है, यार अभी कोई गया था, हु वाज ही, या अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, वी फॉरगेट. राइट. सो इंटेलेक्चुअल वेलनेस मींस you have to practice your brain also regularly, continuously throughout the life. राइट. शुरू से हम लोग पढ़ाई करते हैं, कॉलेज टाइम तक पढ़ते हैं, फिर हम अपने काम में बिजी होते हैं, तो एक मोनोटोनस वर्क हमारे पास हो जाता है, हमें वो तो याद रहता है, लेकिन हम सब पीछे का भूल जाते हैं. To keep your brain sharp, you have to go, you have to read something every day. You have to do something creative, कुछ ऐसा करना है, because reading भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है. People don't have habit of reading. राइट. न्यूज़पेपर की भी हेडलाइन पढ़ ली. टीवी आजकल लोग देखते हैं, टीवी में दे नो कि द न्यूज इज गोइंग टू रिपीट एंड रिपीट फॉर द होल अकेले डे. है या 50 एंड न्यूज, 100 न्यूज, 200 न्यूज. सुन लिया हेडलाइन, ठीक है. जी. अब यहाँ पर आई वुड लाइक टू ऐड कि एज यू ग्रो, ट्राई टू play something, maybe chess, राइट. carom. They are recreation also, plus they are sharpening your mind also. You can go for Sudoku. या. So something you have to do for your brain also. Brain, समथिंग क्रिएटिव, intellectual समथिंग well. आर्टिस्टिक. लोग कहते हैं हमें को हॉबी का टाइम नहीं है. दे मस्ट हैव 1 hour फॉर देयर ओन सेल्फ, चाहे गार्डनिंग है, चाहे डांसिंग है, आर्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए Yes. जो आपके रूटीन से हट के आपके ब्रेन फोल्ड्स को रिलैक्स भी करे, इंजॉय भी खोले, करे. रिलैक्स भी करे और खोले भी, because राइट. राइट. you feel pleasure when you do something of your choice. राइट. ट्रू. Then comes the financial wellness. Then financial wellness, जब हम बात करते हैं, तो financial wellness is not to earn money. It is to manage the money. राइट. हम जो भी कमा रहे हैं, हम जितना भी हमें मिल रहा है, उसको हमें मैनेज कैसे करना है और उसे आगे बढ़ाना कैसे है. दिस इज फाइनेंशियल वेलनेस. नॉट टू थिंक कि हाँ मेरे को 2 का 4 करना है, 4 का 8 करना है. टू बी इन योर, पहले जैसे कहते थे ना कि जितनी चद्दर है उतने उतना ही पैर पसार, पहुंचना. है ना. तो उस हिसाब से हमारी जितनी चद्दर है, हमें उसी में अपने को समेटना आना है, और हमें उस ऐसी चद्दर खरीदनी है जो बड़ी हो. लंबी हो, बड़ी हो. बिल्कुल. हाँ, दैट्स बड़ी माय हो. पॉइंट. ठीक है. बिल्कुल. तो हमें नेक्स्ट कम अपने फाइनेंसेस को 2 तरीके से देखना है कि जितना हमें आ रहा है पहले तो हम उसको खुश खुश रहें उसमें, और फिर सोचें कि हमारी कितनी काबिलियत है, हम क्या पढ़ाई करें, लर्न मोर, अर्न मोर. हम अपने और कितने टैलेंट्स हैं जिनको हम अर्निंग सोर्स बना सकते हैं, और उससे हम अपनी अर्निंग बढ़ाएं, अपनी चादर बढ़ाएं, अपने पैर फैलाएं, इंस्टेड ऑफ इसी वरी में रहने का कि कैसे होगा, लोगों के पास कैसे है, हमारे पास कैसे नहीं है. तो अपने अंदर अगर हम झांकें
तो हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, जो योग में मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, आई एम द यूनिवर्स, हम अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर सब Correct. कुछ, लेकिन बस उसको रिफाइन करने की और उस पर काम करने की। Fine. नेक्स्ट डायमेंशन I है। am next dimension is our सॉरी, आप environmental. कुछ कह रही थी। मैं आई वाज सेइंग कि आई एम 52 और इस समय ड्यूरिंग कोविड आई रियलाइज कि कुछ करना चाहिए. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट आई कैन से. राइट। ओके, आई टर्न टुवर्ड्स योग. और अभी भी मेरे घर वाले ये कहते हैं कि तेरी पढ़ाई कब बंद होगी ना. यू आर बिजी विद समथिंग और अदर. तो यू स्टॉप इट नाउ. लेकिन फिर ऐसा लगता है कि खाली बैठे हैं तो व्हाई नॉट टू डू समथिंग. बिल्कुल तो जीवन चलने का नाम, तो जीवन में ये तो, और फिर हम एजुकेशनिस्ट हैं तो पढ़ाई का तो हमारा साथ जो है, और जो सेटिस्फेक्शन है, वी नो कि अगर हम 1-2 घंटे और कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे लोगों की भलाई हो सकती है, तो व्हाई टू वेस्ट टाइम हियर एंड देयर डूइंग ऑल काइंड ऑफ गॉसिप्स। सो डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव काम है, और बहुत पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है। नेक्स्ट टाइम। next dimension is our environmental dimension because it's very much needed nowadays. Be friendly where you live. See what is around you. Try to make more greenery. जैसे वास्तु भी कहता है कि अगर आप हरियाली के बीच में रहते हो तो यू हैव ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव। एनर्जीज, पॉजिटिविटी. सो एनवायरमेंटल, हमें अपने आसपास के वातावरण का भी पूरा ध्यान रखना है. इट्स नॉट ओनली फॉर सोशल सर्विस. कभी संडे को आप बाहर जाते हैं, आप देखते हैं आपकी सोसाइटी में एक ग्रुप बना हुआ है, you are not a member, then also try to contribute something to them. अगर आप सफाई नहीं कर सकते, उनके साथ मिलके कुछ नहीं कर सकते, तो आप पौधे खरीद के दे सकते हैं, या उनके किसी डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, उसमें कभी आप जाके शामिल हो सकते हैं. तो यू शुड बी फ्रेंडली विद योर एनवायरमेंट. इस आसपास क्या हो रहा है. एंड देन कम्स मेन न्यूट्रिशनल dimension, because nutritional wellness is very much needed for everyone. आज की जंक फूड की दुनिया में, जहाँ चारों तरफ जंक ही जंक है, एवरीवन वांट्स द फास्ट फूड, फटाफट बने, फटाफट खाएं, है ना, और उसको बस पेट भरना है. सो द मंत्रा इज ईट राइट, बाइट बाय बाइट. यू शुड थोड़ा खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. और ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, दिस इज द थिंग विच इज मिसिंग. न्यूट्रिशनल वेलनेस इज वेरी मच नीडेड फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. वहां पर दे हैव ऑल कैंटीन्स, ऑल स्नैक्स, बट व्हाट दे आर फीडिंग टू देयर एम्प्लॉयज, वो उन्हीं को डिट्रॉइट कर रहा है. हेल्थ तो एम्प्लॉयज की खराब हो रही है. एट द एंड ऑफ द डे योर प्रोडक्शन इज रिड्यूसिंग. True, because they are the assets who are giving you the result. And then last comes our occupational wellness or career wellness. And here again it comes with the financial wellness. We can relate it. Be satisfied in what you are. Focus on your work and then try to grow. Don't try to grow without completing that task which has given the first, which is the source of earning for you. हमें प्रोग्रेस तो करनी है, बट हमें उसमें सेटिस्फाई भी रहना है. और हम क्योंकि जब कुछ करते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट, हमें वो रिजल्ट भी देना है, देन ओनली वी आर गोइंग टू ग्रो. सो दीज आर द 10 डायमेंशंस, जिसमें अगर हर डायमेंशन को थोड़ा 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 आप देखेंगे. सी, हम एक वेलनेस एक डायमेंशन में पूरे नहीं उतर सकते. हमें सबको साथ लेके चलना है. हमें सब पर फोकस करना है. और जब हम सब पे फोकस करेंगे, देन ओनली वी विल बी हैप्पी, वी विल बी सेटिस्फाइड. एज आई सेड, वेलनेस इज अ जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन. तो हमें जो डेस्टिनेशन हमारी हैप्पीनेस है, वी विल ओनली रीच देयर व्हेन वी विल टेक small steps towards each of them. Right. So this is your mantra, how to manage it. आप उसके लिए कोई लोगों को बोलना चाहेंगे? क्योंकि जनरली यही देखा गया है कि लोग एक चीज पर फोकस करते हैं एक टाइम पे. अभी डाइट पे फोकस कर रहे हैं, तो
या फिजिकल एक्टिविटी पे भी फोकस कर रहे हैं, उधर जिम भी ज्वाइन कर लिया, डाइट पे भी, लेकिन वो 2-3 महीने के बाद फिर सब छूटने लग जाता है। या उसके बाद उन्हें छूटने लगता लग है चलिए हम कुछ और करते हैं, या फाइनेंसेस पे ध्यान देते हैं, या अपनी किसी हॉबी पे। जाता है। सो मैंने देखा है लोगों की एक कंप्लीट अप्रोच नहीं होती, तो वो कैसे मेंटेन की जाए? रिसर्च हैव शोन, रिसर्चेस ने बताया है, और स्पेशली द साइंस ऑफ बिहेवियर्स हैव सेड कि वेलनेस, जो वेलनेस इज अ चेंज। और जब हम चेंज शुरू करते हैं, देखिए थोड़ी दिक्कत तो आती है। जी। हम कुछ भी नया करेंगे ना, लिटिल बिट वी हैव टू फेस, बट अगेन, लाइक स्टार्ट विद द फिजिकल, बिकॉज दैट इज विजिबल। हम्म। जब हम फिजिकली अपना शुरू करते हैं, साइमल्टेनियसली व्हेन यू आर फिट यू हैव मोर ऑफ एनर्जी, आपका मन करेगा कि मैंने आज फिजिकल वेलनेस, फिजिक, अपनी फिजिक पे ध्यान दिया है, लेट मी ईट समथिंग हेल्दी। राइट, ट्रू, वेरी ट्रू। जब मैंने 40 मिनट वर्कआउट किया है, आई शुड हैव समथिंग हेल्दी। राइट। जब आपने हेल्दी खाया, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आज मेरी एफिशिएंसी बढ़ी है, एंड ऑटोमेटिकली द एनर्जी लेवल विल गो अप। राइट। So you will have all positive in your financial and your occupational where you are working, वहां आपकी एनर्जी दिखेगी। People will start saying कि हाँ, he is full of energy throughout the day. राइट। Automatically आप लक्ष्मी को अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल। Okay, the finance will come to you. You will grow in your occupation. राइट। When you will grow in your occupation, then again you will be more motivated to do other things also. बिल्कुल। So the thing is, let the wellness flow. We should have that wellness flow. We should not stop. राइट। कोई बात नहीं, अगर एक दिन हम कुछ नहीं कर पाए, सेकंड डे वी कैन ट्राई। आज राइट। हमारा एक डे ऑफ हो गया और सेकंड डे की कल कुछ नहीं किया, नो नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। इट शुड कीप ऑन फ्लोइंग। ट्रू। नदी कभी नहीं रुकती, पानी रुकता नहीं है। अगर आपने वही उसे वही। एक बार उसको शुरू करना है कि मुझे जाना है, करना है, हाँ then it जी। will go. राइट। सो हमारी कॉर्पोरेट वेलनेस पे बात चल रही थी, तो कॉर्पोरेट वेलनेस के क्या बेनिफिट्स हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स की इंडस्ट्रीज को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, डॉक्टर अंजुम आई से कि वेलनेस, अगर हम ये बात करते हैं कि हु ऑल नीड वेलनेस, तो एवरीवन नीड वेलनेस टुडे। True. Maybe it's a child or adult or elderly people, but why the corporate people have come into existence for the wellness? Because I'll be thankful first to corporate people कि जो हमारी जीडीपी है या हमारे जितनी प्रोग्रेस है, that is because of the corporate world. Very true. They are so hardworking, they give result, they are so focused for their targets, but again in this race they forget what their employees are doing. They want results for the employees, but they forget that employees are their real assets, and they need to look after their wellness. कॉर्पोरेट वेलनेस में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज एवरीवन इज सो बिजी। सुबह उठते हैं एंड द फर्स्ट थिंग इज द कॉल फ्रॉम द बॉस, या एक एम्प्लॉय के पास भी टारगेट होता है कि मुझे ऑफिस से घर से निकलने से पहले भी ये 3 काम करने हैं। जी। और वहीं घर में समवन, योर वाइफ वांट्स टू स्पीक समथिंग टू यू, शी वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द किड्स और किसी कोई मैटर के लिए, और आपके पास टाइम नहीं है। आप वो बात करते करते घर से निकल जाते हो। रास्ते भर क्या सोचते हो? यार उसे कुछ कहना था, शी वांटेड टू टेल समथिंग टू मी, आपने सुना नहीं। वो स्ट्रेस कहाँ आया? सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में वो स्ट्रेस चला गया। इधर आपकी वाइफ जो कुछ आपसे शेयर करना चाह रही थी, या फैमिली मेंबर, बच्चे शेयर करना चाह रहे थे, वो गुस्सा हो गए कि हमारे लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, आप हमेशा बिजी रहते हो। तो वो जो स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है अंदर, धीरे 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 वो पूरा स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है अंदर। दिस इज द स्ट्रेस जो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सेकंड नाम बन चुका है। राइट। ये कहते हैं कॉर्पोरेट मीन्स स्ट्रेस। So corporate have to look into this factor कि how we can manage. You cannot reduce the stress, you cannot remove the stress. The thing is you have to manage the stress of your company, of your employees. राइट।
And the only way to manage the stress is to look after the total holistic wellness of your employees and your company. Right. To inculcate some practices that your employees are happy, they give the full to you, and they मतलब they want to progress. Right. आज आप देखिए कॉर्पोरेट में कितने लोग अब इसकी नीड क्यों आ गई है, स्ट्रेस इतना बढ़ गया, पीपल आर लीविंग द जॉब्स, दे आर गेटिंग Right. वेरी गुड पैकेजेस, वेरी Yes. गुड पैकेजेस, बट दे डोंट वांट टू मूव। वो Right. कहते हैं कि वहां इतना देंगे, वो हमसे मतलब दे विल पे अस सो मच एंड दे विल टेक वर्क डबल देन दैट, Right. सो उस दे पैसे को डोंट एंजॉय नहीं कर पाएंगे, टाइम ही एंजॉय नहीं करने के बाद बचेगा। उनके पास टाइम ही नहीं है उनके पास। आफ्टर That's कोविड रिसेशन हैज कम, तो right. लोग जॉब की तरफ भाग रहे हैं, एंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे आर मेकिंग यूज ऑफ द रिसोर्सेज डबल देन व्हाट दे हैव Yeah. नॉट गेन ड्यूरिंग द, दे वांट टू, वो अपना कहते हैं ना भरपाई करना चाह रहे हैं, कवर अप करना चाह दे रहे हैं। हैव, of course they have to cover up, but not on the basis of wellness of their employees. एम्प्लॉय नॉट, या उनके उस पे नहीं, बिल्कुल उनकी हेल्थ नहीं तो करना देखना ही चाहिए, and the पड़ेगा। best method is to look after the wellness of their employees, they will get the best result, I can assure you, because you see many companies have done this. राइट, राइट, ट्रू। मेनी कंपनीज आर टेकिंग इनिशिएटिव, और जो नहीं लिए हैं, जिन लोगों को, उनका ये एक हाई पॉइंट है टू बी अवेयर अबाउट द हेल्थ ऑफ देयर एम्प्लॉयज, डेफिनेटली। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द 7 वेज ऑफ होलिस्टिक वेलनेस, हाउ वी कैन डू इट। सो वो कौन से वेज हैं, आप बताना चाहेंगी? If we talk about the corporate world, on the floor when during the working, it's like we have named it as dry mess. Like the 7 ways for looking after the wellness is drinking. We know, क्योंकि we know कि अगर हम थोड़ा सा भी किसी दिन पानी कम पीते हैं, we get dehydrated. So the employers or the company should look after the drinking pattern of their employees. They should provide water between the respective interval. क्योंकि जब कोई एम्प्लॉय काम करता है, he don't have time to get up and go for the water. Right. So if they provide the water on the table, I think it will help them, both of them, the two-way process, to enhance their performance. True. Okay. Second is, you can say R means reading. Every corporate company world should have an in-house library, because many of us have a habit of reading, maybe the newspaper, the small magazines, or the update about their own business. So when they have time, when they are relaxing, they can go there and they can read something. It will enhance their knowledge also, and it will relax them also. Then comes the eating pattern. हमने अभी बात की, every corporate world is providing snacks. Right. But what they are providing? All burger, pizza, uncle chips. Coffee and coffee and coffee. Coffee, yeah. I have seen one of my niece is working in a corporate world, and they get coupon of some particular rupees where they can purchase the snacks. So you are giving the coupons to them, and what they are purchasing, you never know. Right. And that is only for snacks. You can purchase the snacks only. So instead of that, if you provide them, like you have a break, small break, and if you are providing them some nutritional to eat, like sprouts, fruits, which they miss during their whole day, they don't have time to go home and eat those things. So you can provide there itself. Right. 2 bananas, 1 apple, 1 orange, seasonal fruits, so that this is missing in their in their diet plan. Definitely. In their diet plan, which are very much needed. So they will be happy. उनको भी ऐसा लगेगा, यार ये हम घर नहीं खा सकते थे, चलो हमने यहाँ पर तो खा लिया. Right. So like that next we have to take care of yoga or exercise. Because the physical exercise or the gym, it's not feasible corporate world mein. If you provide a gym also, so they are not dressed up in like that. So you can provide the like chair yoga. Have a break, like Japan mein hota hai, they have a particular time for exercise in their offices.
So you have, even in India, it has started. I knew 1 or 2 companies who have started it. So you can go for chair yoga. At least they can do relaxation. They can do stretches. Mm-hmm. And the corporate world will see they have a very good result. Right. उनको जो फिजिकल प्रॉब्लम जो 6 महीने बाद होनी है, बैक एक, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, एटलीस्ट वो उससे बचेंगे. और जब वो उससे बचेंगे तो यू विल हैव लेस ऑफ एब्सेंटीज. जब एब्सेंटीज लेस होगी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा. ऑल आर इंटर रिलेटेड. देन कम्स द मेडिटेशन. मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आप सुबह सिर्फ 10 मिनट उनको मेडिटेशन कराइए. एज सुन एज योर ऑफिस स्टार्ट्स, go for the meditation for 10 minutes, maybe recorded हो, सब अपनी चेयर पे बैठे हो, रिलैक्स हो, और before leaving the office. वाओ, ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस तक राइट. वहीं पे छोड़ दिया. घर जाएंगे तो they will be fresh, they will be free for their family, for other work. So next dimension is meditation. Yeah, meditation is very much useful. और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, आफ्टर एज द ऑफिस बिगिंस एंड बिफोर लिविंग द ऑफिस, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड 10 मिनट्स का मेडिटेशन सेशन अपने एम्प्लॉयज को दे, दे विल रिजल्ट इन डबल द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर कंपनी. बिकॉज जो स्ट्रेस होता है जब वो आए हैं, और जो दे द स्ट्रेस प्रिवेलिंग देयर माइंड, रिलैक्स बिफोर द वर्क एंड रिलैक्स आफ्टर द वर्क. जैसे एक्सरसाइज में भी हम करते हैं कि वी हैव टू रिलैक्स एंड देन स्टार्ट द समथिंग एल्स. एग्जैक्टली. सो ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस में ही छोड़कर जाएं, घर आराम से पहुंचे, और जब बिल्कुल ट्रैफिक में से निकलकर ऑफिस पहुंच रहे हैं एक स्ट्रेस के अंदर, सो वहां आकर पहले अपने स्ट्रेस को रिलीज करें, रिलैक्स करें, और अपना एक फ्रेश डे जो है वो लोग शुरू कर पाए. और यहीं पर मेडिटेशन से रिलेटेड शायद लोगों को लग रहा होगा कि 10-10 मिनट के मेडिटेशन से क्या होगा, तब तक तो ध्यान भी नहीं लग पाता. बट मेडिटेशन का मतलब है जस्ट अपने ब्रेथ वर्क को कंट्रोल में लाना, और जिससे हमारा ब्रेन कंट्रोल में आना हो जाता है. एंड देयर इज अ वेरी वन ब्यूटीफुल रिसर्च डन इन यूएसए that 30 minutes of one mindful meditation they have done, and one of the group was asked to just watch their favorite, हम सबके अपने अपने फेवरेट कुछ ना कुछ एपिसोड्स होते हैं, सीजन होते हैं, तो लाफ्टर चैलेंज देखें, डांस प्रोग्राम देखें. एंड इन अ वन सेशन ऑफ 30 मिनट माइंडफुल मेडिटेशन से उन्होंने माइंड ब्रेन मैपिंग की, जिसमें स्ट्रेस और जो था वो कम था, जिसमें जो ब्रेन एक्टिविटी थी वो बहुत एनहांस थी, हैप्पी हार्मोन सेक्रेटेड थे. वेयर एज जिन लोगों ने सिर्फ बैठकर, जैसे हमें लगता है कि बैठकर हम रिलैक्स करेंगे एंड दैट विल गिव अस हैप्पीनेस, वहां पर कोई रिलैक्सेशन और कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं था, नलिफाई. सो इसलिए 10 मिनट से भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये नदी है, फ्लो है, बहना चाहिए, और जो छोटे छोटे पत्थर स्टोन्स बीच में होते हैं उसपे से भी पानी निकल कर जाता है, वो हमें सीखना चाहिए. आप देखिए ना, मेडिटेशन का मतलब ध्यान. हम कहते हैं ना बच्चों को, ध्यान से काम करो, ध्यान से ये करो. तो व्हाट इज मेडिटेशन? इज टू बी इन प्रेजेंट. उनको जब वापिस आए तो हम उन्हें प्रेजेंट में लाना है. आप आ गए हो, नाउ यू आर इन प्रेजेंट, यू हैव दिस वर्क, यू हैव दिस टारगेट, डू इट. और जब वो जा रहे हैं, अगेन ध्यान कि आज जो मैंने किया, वी शुड हैव सम ग्रेटिट्यूड्स, we can have some affirmations with them. वो सब उसके साथ ग्रेटिट्यूड जब जा रहे हैं तो you thanks to the your God Almighty, your employees, your friends, anyone who has contributed that day, उनको वहीं थैंक करें. कहते हैं ना कि उसी दिन का बोझ उसी दिन उतार दीजिए. दिमाग में ये रहता है मुझे उससे ये कहना है, उससे ये कहना है. Everything you do it and then you go. Wow. Okay. Then next is strength. Why strength is needed? We know कि जब हम strong होते हैं ना, strength is not the physical strength, but it's the strength of our mind, of our emotions, of our working capacity. Because just जब we are strong, we are confident. और जब हम confident होते हैं तो then we boost ourselves. Comes positive, सब कुछ positive होता चला जाता है. So we should have strength. We should have strength of all the dimension within us. And then comes the sleep. ऐसे ये तो proved है,
8 hours of sleep is very much needed for everyone to give the best of their production throughout the day. Right. Employer should also look, उन्हें देखना चाहिए कि वो how their employees, they should have something to monitor their sleep also. कितना सोए, आप उनसे कहिए कि ओके एक सिंपल सी डायरी बनानी है. आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है कि एज सून एज योर अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी जब आप अपना स्क्रीन खोलोगे एंड यू एंटर योर कोड. Right. वहीं पर इफ यू कैन पुट 2-3 क्वेश्चंस, कितना पानी पिया, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डिड यू हैड, व्हाट डिड यू हैड इन ब्रेकफास्ट, या स्लीप पैटर्न, आपने कितने आवर्स की स्लीप ली. दे हैव टू फिल ऑल 4 क्वेश्चंस. कोई थोड़ा बहुत झूठ लिख सकता है, एक दिन झूठ लिख सकता है, 2 दिन, तो धीरे धीरे उसको दिमाग में ये सेट होगा कि आई हैव टू डू दिस. राइट, इसी बिल्कुल. तो वो सच लिखेगा. हाँ जी, जी, कहीं ना कहीं माइंड उसका वो होगा. बिल्कुल. Other than this, we can go for uh, uh, like aerogenic office equipments. राइट. जो बैठे रहते हैं, they keep on sitting. So there should be something कि कुछ उनको ऐसा काम बीच बीच में दिया जाए कि वो खड़े हों, घूमे. आजकल तो इतना कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने इतना वर्स कर दिया है. They have moving chairs. People don't get up. They राइट. will take chairs from one place to another. To another, Yeah. one table to तो another. उठ भी नहीं रहे हैं. तो थोड़े what will be the result after some time? Their knees won't work. Right, They will have jams in their knees. right, right. Blockage हो जाएगा सब. All joints will be blocked. बिल्कुल. Then they can go for health ambassador in their corporate. जब उन्होंने कोई वेलनेस प्रोग्राम उसको इनकॉर्पोरेट किया है और उसमें कोई कोई रिजल्ट दे रहा है, some few of them, so they can make the health ambassador for every week, Right, so that person will be a motivation for others. right. Like these small steps they can take to let the wellness flow, I can say, to inculcate all the wellness programs in their corporate. Right. And last but not the least, they should organize, they should motivate their employees for the wellness retreat. Right. And that too with their family. Because family, many persons are there कि हम हमेशा काम करते हैं, यार ये 2 दिन छुट्टी गए थे, इसमें भी ये हमें कहीं ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, और घर में मेरी फैमिली पीछे है, इतना काम है. And if they are motivated, okay, you can bring your family for 2 days, they will be more than happy. Happy. Yeah, बिल्कुल, बिल्कुल. और मैंने देखा Yoga, है कि कुछ ऑफिसेस ले जा रहे हैं लेकिन वहाँ अल्कोहलिज्म हो रहा है, वहां फिर से ही एक अनहेल्दी डाइट, बिकॉज दे वांट टू मेक देम हैप्पी. सो कॉर्पोरेट भी ये मिस कर रहे हैं कि हैप्पीनेस, सारा अनहेल्दी एनवायरनमेंट और बहुत सारा आ, धमाका करने से उनको वो रिजुविनेशन और रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा जो उनकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है. उससे बेटर है कि वो हॉलिस्टिक रिट्रीट्स, रिजुविनेटिंग रिट्रीट्स के लिए लेकर जाएं, जहां पर रियल सेंस ऑफ वेलनेस जो है उनका एनहांस हो एट द डीपर लेवल, एट द सेलुलर लेवल. जहाँ मॉर्निंग में मे बी मेडिटेशन से स्टार्ट हो, रिलैक्स रहें, योगा करें, कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट लें. और मुझे लगता है हर इंसान भी ये चाहता है टू हैव अ ब्रेक एंड टू अगेन rejuvenate themselves, again reconnect themselves from their own body mind. on. That's a very beautiful suggestion. I'm sure आप जितने भी corporates को इस टाइम पे डील कर रहे हैं उन सब ने बहुत ही enhancement की होगी अपनी health, happiness और performances पे. और anybody who would like to hire her or who would like to contact her, they can go ahead. और साथ ही जो लीडर्स हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, उन्हें भी अपने को एक आइडियल मॉडल जो है वो अपने ऑफिसेस में दिखाना चाहिए. और इसी के लिए मैं एक यथा राजा तथा प्रजा कहा ही जाता है, लीडर्स हैव टू वॉक व्हाट दे आर टॉकिंग. सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो महिपालपुर, उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया था, जब पीएम मोदी ने फिटनेस मूवमेंट जो है, फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था उसके बाद, एंड जो आईएएस मिस्टर पवार है, वेरी मच उन्होंने 6 ट्रेनर्स मांगे और 3 फ्लोर्स थे. सो इन द वेरी फर्स्ट सेशन he was on the floor, and on every session he made it a point to be on the floor. और उन्होंने मुझसे कहा कि I know few of them, they are not motivated enough,
आई नो दे वांट टू गो होम, दे वांट टू लीव ऑफिस इमिडिएटली, बट इसीलिए मैं फ्लोर पर हूँ कि उससे इन लोगों को रहेगा कि भाई मैं भी कर रहा हूँ। और उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ डॉक्टर रेखा। सब लोगों का 100% अटेंडेंस था, सबको मोटिवेशन था, and सबको दिखाना भी था कि वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपने जो Believe me, among them for 20 to 30% people change हुए भी होंगे, बिल्कुल जिन्हें ये समझ आया होगा कि what is the importance of this wellness or this activity. एग्जैक्टली और वो And डेली I should करने से continue. चेंज, उनमें Yeah. चेंज इतना आया कि अल्टीमेटली 18 मार्च को जब उनका एनुअल डे था, तो Mhm. उन ऑफिसर्स ने, जिनमें से कुछ आईएएस, कुछ इतने हाई लेवल के ऑफिसर्स ने स्टेज पर एरोबिक परफॉर्मेंस दी। स्टेज पे हमने जो कोरियोग्राफी कराई, योगा परफॉर्मेंस दी, एंड दे वर सो हैप्पी। उनकी फैमिलीज आई थी, बच्चे आए थे, और उन्होंने देखा कि स्टेज पर कितना फिटनेस प्रोग्राम हो रहा है। Because Dr. Anjum, I'll tell you कि when we do something जो हम कुछ हटके अपने प्रोफेशन से करते हैं ना, that always give us pleasure. प्लेजर, जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिकली अचीवमेंट मोटिवेशन। Achievement. आई हैड अ वेरी हाँ. ब्यूटीफुल रिसर्च पेपर, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है मेरा अचीवमेंट मोटिवेशन पे, कि क्यों स्पोर्ट्स, क्यों फिटनेस एक्टिविटीज हमें खुशी देती है। वन, डेफिनेटली हैप्पी हार्मोन सेक्रेट होते हैं, Yeah. एंड Correct. सेकंड, किसी ने मुझे कहा था, किसी को मैंने ट्रॉफी दी थी वुमेन्स डे पर, और वो बिल्कुल होम मेकर है और गांव हरियाणा की बेल्ट से, उन्होंने कहा ये पहली ट्रॉफी है जो मुझे मिली, आज मैं भी अपने बच्चों को जाकर दिखाऊंगी कि लोग, क्योंकि उनकी फिटनेस इतनी बढ़ गई थी। तो ये अचीवमेंट मोटिवेशन जो है, कभी कभी हम पढ़ाई में नहीं दिखा पाते, कभी कभी हम अपने, Correct. हो सकता है ऑफिस में नहीं दिखा पाते, लोग हमसे हो सकता है ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा काम कर पा रहे हो, हर एक का अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, लेकिन ये छोटी छोटी अचीवमेंट जो किसी और एरिया में हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, सो वो खुद के लिए भी बहुत बूस्टिंग होता है, और सोसाइटी के लिए भी आपका जो है एक एनहांसमेंट, एक रुतबा बढ़ जाता है कि Yes. अच्छा मैं ये नहीं कर पाया, ये कर पाया। सो ये भी एक Correct. बहुत, इसलिए जो है जो यूथ है, या मैं किसी भी देश का जो भविष्य है, वो स्पोर्ट्स, Yeah. फिजिकल एजुकेशन और फिटनेस पर बेस्ड है। पढ़ाई तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी लेकिन करते हैं. जहां पर सुसाइड प्रिवेंशन की बात आती है, जहां एंजाइटी या पैनिक अटैक की, डिप्रेशन की बात आती है, वहां के लिए हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो आउट ऑफ द क्लासरूम्स होनी चाहिए, वो बिल्कुल. फील्ड में होनी चाहिए, वो फिटनेस लेवल पर होनी चाहिए, और वहां से हम अगर अपनी वेलनेस को प्रॉपर फ्लो में लेकर आए, तो फिर ये छोटी छोटी चीजें जो है इतनी बड़ी नहीं हो जाएंगी कि हमारा कोई भी यूथ ऐसा स्टेप ले आगे। स्टेप उठाएगा. करेक्ट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी सक्सेस के बाद भी लोगों ने सुसाइड कमिट किए हैं, क्योंकि Because नहीं, there was some dimension of their wellness was lacking. लैकिंग, एग्जैक्टली, उनसे नहीं हैंडल हुआ, हाँ. सक्सेस के बावजूद हैंडल नहीं हुआ, क्योंकि हैंडल नहीं. ये भी हम सबको समझना चाहिए कि फाइनेंसेस हमें चाहिए, ऑक्यूपेशनल सक्सेस चाहिए, सोसाइटी में सक्सेस चाहिए, बट सक्सेस के साथ बहुत स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो वो भी आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। हैंडल करनी आनी प्रोजेक्ट चाहिए. तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को मैनेज नहीं अगर कर पाए, तो वो सक्सेस भी किसी काम की नहीं। That's why I said wellness is all about how to manage the stress. बिल्कुल सही कहा How आप। to manage the हाउ टू stress. मैनेज एवरी एस्पेक्ट, एवरी डायमेंशन, Every aspect. चाहे आप 10 मिनट Every aspect of मेडिटेशन our life. करें, आप दस Yeah. मिनट वॉकिंग करके जाएं, आप स्टेयर केस चढ़ लिए, आप आपने बहुत बेकार आज खाना खाया, लेकिन आप उसमें 2 बनाना ऐड कर लिया, एक ऑरेंज ऐड कर लिया, ग्रीन टी पी ली, खड़े होके स्ट्रेच कर लिया, ये छोटे छोटे अगर हम उसमें काम करें तो Just remember, I'll tell everyone to remember the line. Every day might not be a good day, but there is something good in every day. एवरी डे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेइंग, So बिल्कुल this everyone should remember. राइट। मे बी आज कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना, बंद घड़ी भी एक बार तो टाइम सही दिखाती है दिन में, बिल्कुल है ना? बिल्कुल So बिल्कुल। there is something very good in every day. So pick that moment. आई एम श्योर आपके साथ जो लोग जुड़ते होंगे वो बहुत एंजॉय करते होंगे, बिकॉज आपका लेक्चर मेथड, आपका और मेडिटेशन तो आपकी सेशंस की बहुत ही तारीफ है, लोगों ने बहुत एंजॉय Thank कर you, रहे हैं। thank you. सो इसलिए एनीबडी हु इज सफरिंग विद एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रेस,
they can contact her, they can invite her for their lecture or for their retreats in their organization. And thank you so much for your precious time. Thank you. Thank you so No, you have much. an exam duty. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay. Bye. Bye.